In the previous lecture, we have seen the types of acquired immunity. As you know, acquired immunity is classified as active and passive immunity. We have seen the entire flow chart. Now today, starting with the next slide heading given in your book, that is cells of immune system. Different type of cells which contribute in the development of immunity, different type of cells which play their particular role in the immune system. We have to discuss all the different type of cells which is helpful or which is useful in the immune system or which develops the immunity in the body. Two type of cells are very important and they have the vital role. The first one is lymphocyte and the second one is antigen presenting cells. Both these types are given in your book. In the cells of immune system, two type of cells having the great contribution. First one is lymphocytes and second one is antigen presenting cell. Obviously, we'll start first with the lymphocytes. Lymphocyte is a type of WBC. Lymphocyte is a type of WBC. As you know, WBCs are classified into 5 categories. Lymphocyte is one of them. Now, lymphocyte, just like the other blood cells, formation of lymphocyte, remember, formation of entire blood cells is called as hemopoiesis or hematopoiesis. Formation of WBC, precisely formation of WBC is called as leukopoiesis. Now, lymphocytes develop from a type of stem cell called as hemocytoblast. Hemocytoblast is responsible for giving rise to all the blood cells. So hemocytoblast is a stem cell, or you can say it is a precursor cell which is responsible for the formation of lymphocyte. These hemocytoblast is present. In the case of fetus, it is present in liver, and in the case of adult, it is present in bone marrow. तो lymphocyte का जन्म बच्चों में, fetus में liver में होता है और lymphocyte का जन्म adult में bone marrow में होता है और hemocytoblast उसकी mother cell है, right? अभी जब इसका फॉर्मेशन हुआ, lymphocytes का फॉर्मेशन हुआ, तो बच्चों lymphocytes का maturation या differentiation, you can say, इसका differentiation, some of the lymphocyte they differentiate to form different types of lymphocyte, and for differentiation of the lymphocyte, some of the lymphocyte migrates into the gut associated basal lymphoid tissue. Gut is a alimentary canal. Gut associated basal lymphoid tissue, a type of lymphoid tissue called as basal lymphoid tissue, and the example of such tissue is tonsils and Peyer's patches. Peyer's patches are present in the inner wall of the alimentary canal in the form of patches. तो ये बर्सल टिश्यू है, associated basal lymphoid tissue. तो lymphocyte का जन्म हुआ लिवर में या बोन मैरो में, मगर डिफरेंशिएशन के लिए वो गट के बर्सल लिम्फोइड टिश्यू में गए और वहां पर जब उसका डिफरेंशिएशन होगा, सच लिम्फोसाइट्स आर नाउ कॉल्ड एज बर्सल लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट. बी स्टैंड्स फॉर बर्सल लिम्फोसाइट. ओके, तो यहां पर अब हमारे पास लिम्फोसाइट का एक टाइप मिल गया, बी लिम्फोसाइट. Similarly, for differentiation, some of the lymphocytes they migrate to the thymus. Thymus is one of the endocrine gland जो हमारे चेस्ट रीजन में स्टर्नम बोन के पीछे प्रेजेंट होता है. इट इज वन ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड. इट इज ऑल्सो एक्टिंग लाइक अ लिम्फोइड टिश्यू. तो थाइमस में उसका डिफरेंशिएशन, उसका मैचुरेशन होगा. तो बच्चों, जो लिम्फोसाइट डिफरेंशिएशन और मैचुरेशन के लिए थाइमस में जाएगी, वैसे मैच्योर लिम्फोसाइट्स को हम बोलेंगे टी लिम्फोसाइट्स. टी स्टैंड्स फॉर थाइमस वाली लिम्फोसाइट. Now we have two different types of lymphocyte, B lymphocyte and T lymphocyte. These are the two main types of lymphocyte. बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट. डिफरेंस होप आप समझ गए. इनका फॉर्मेशन लिवर या बोन मैरो में हुआ था. डिपेंडिंग अपॉन द साइट ऑफ मैचुरेशन, दे आर क्लासिफाइड एज बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट. अगर उसका मैचुरेशन बर्सल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू में हुआ है तो बी लिम्फोसाइट. उसका मैचुरेशन अगर थाइमस में हुआ है तो वो टी लिम्फोसाइट. नाउ बोथ दीज टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट, इनका यहां पर मैचुरेशन हो गया. नाउ दिस मैच्योर लिम्फोसाइट दे कम इन द बॉडी फ्लूइड फॉर सर्कुलेशन.
सर्कुलेशन के लिए बॉडी फ्लूइड में, हमारे ब्लड में, लिम्फ में ये सर्कुलेट करती हैं और सम टाइम दे गेट सेटल्ड इन द लिम्फ नोड. लेटर ऑन दे आर यूज्ड बट फॉर द टाइम बीइंग दे सेटल्ड इन द लिम्फ नोड. तो ये जो मैच्योर बी सेल्स होती हैं और टी सेल्स होती हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, वो या तो बॉडी फ्लूइड में, ब्लड में और लिम्फ में सर्कुलेट होती हैं या फिर लिम्फ नोड में सेटल हो जाती हैं. नाउ this B lymphocyte, बच्चों, B lymphocyte is responsible for developing a type of immunity. It is responsible for developing a type of immunity called as humoral immunity or antibody mediated immunity. B lymphocyte is responsible for developing a type of immunity in our body and such immunity which is developed by B lymphocyte, उस immunity को हम क्या बोलते हैं? Humoral immunity बोलते हैं या antibody mediated immune system कहते हैं. इसी का abbreviation है AIMS, antibody mediated immune system. On the other hand, टी लिम्फोसाइट का मैचुरेशन हुआ था. टी लिम्फोसाइट या तो बॉडी फ्लूइड यानी कि ब्लड और लिम्फ में था या तो लिम्फ नोड में सेटल हो गया था. अभी टी लिम्फोसाइट के द्वारा हमको जो इम्यूनिटी मिलती है, दैट इम्यूनिटी इज कॉल्ड एज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, दैट इज कॉल्ड एज CIMS. This one is antibody mediated immune system. यहां पे एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन होगा, यहां पे एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन नहीं होगा, यहां पे सेल विल प्रोवाइड द इम्यूनिटी. सो दिस वन इज एंटीबॉडी mediated immune system, sorry, antibody mediated immune system, and this one is cell mediated immune system. This one is AMIS, antibody mediated immune system, right? Now the next part is, after their maturation, as you know, they are responsible for providing different types of immunity. बच्चों देखो, अभी यहां पर ना इसका कॉन्सेप्ट अलग है, इसका कॉन्सेप्ट अलग है, मतलब इनका मोड ऑफ वर्किंग अलग अलग है. आई विल स्टार्ट विद दिस टाइप ऑफ दिस, आई एम स्टार्टिंग विद दिस केस. ओके, नाउ व्हाट हैपन, this B lymphocyte, they provides antibody mediated immune system, they provide antibody mediated immunity. अब ये जो B lymphocyte है, B lymphocyte needs stimulation from antigen. बॉडी में जब फॉरेन पार्टिकल एंटर होगा, बॉडी में जब एंटीजन एंटर होगा, एंटीजन विल स्टिम्युलेट मैच्योर बी लिम्फोसाइट्स, and also helper T cell is responsible for stimulating mature B lymphocytes. अब ये helper T cell क्या है, यहां पर आ रहा है, wait for 5 minutes. अभी ये helper T cell और antigen is a foreign particle, helper T cell ये वाली, these two cells, these two materials are responsible for stimulating B lymphocyte. Once B lymphocyte gets the signal, once B lymphocyte gets the stimulation, B lymphocyte starts multiplying. They multiply rapidly, they multiply very fast and they make number of clones. वो अपनी बहुत सारी कॉपीज बना लेंगे, B lymphocyte अपनी मल्टीपल कॉपीज बना लेंगे. बच्चों अभी B lymphocyte के दो टाइप, मतलब इसके दो टाइप के क्लोन्स बनेंगे. एक होगा प्लाज्मा सेल और एक होगा मेमोरी बी सेल. एक होगा प्लाज्मा सेल और एक होगा मेमोरी बी सेल. नाउ दिस प्लाज्मा सेल, which is a type of B lymphocyte, right? It is a clone of B lymphocyte. This plasma cell is responsible for producing glycoprotein molecule. It is responsible for producing antibody molecule, जो chemically glycoprotein है. तो antibodies के formation के लिए plasma cell is responsible. Plasma cell is a type of B lymphocyte. B lymphocyte is a type of lymphocyte जिसके formation के लिए hemocytoblast is responsible. अभी बच्चों ये जो एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन होता है, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि एंटीबॉडीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग द एंटीजन, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूट्रलाइजिंग द एक्शन ऑफ एंटीजन. तो ये एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन के लिए प्लाज्मा सेल रिस्पॉन्सिबल. नाउ दीज एंटीबॉडीज
जो यहाँ पे फॉर्म्ड हुई है, ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल, वाई शेप मॉलिक्यूल होता है जो यहाँ पे फॉर्म्ड हुआ है, दीज एंटीबॉडी दे ईदर बाइंड टू सेल मेम्ब्रेन, वो या तो किसी सेल के मेम्ब्रेन पे अटैच रहेंगी, और दे मे बी फाउंड फ्री इन ब्लड और लिम्फ, वो हमारे ब्लड या लिम्फ में फ्री सर्कुलेट भी हो सकते हैं, या फिर वो हमारे बॉडी की किसी सेल के साथ अटैच भी हो सकते हैं. मेनी एंटीबॉडीज आर फाउंड इन द ब्लड. मेनी एंटीबॉडीज कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्लाज्मा और फ्रॉम द सीरम, दैट इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड. तो यहां पे ये वाली मैंने प्लाज्मा सेल बताया. मेमोरी बी सेल जो है, मेमोरी बी सेल, ये फर्स्ट एनकाउंटर का यानी फर्स्ट टाइम जब एंटीबॉडीज बना एंटीजन के लिए, एंटीजन स्टिमुलेशन के लिए एंटीबॉडी बना, तो फर्स्ट एनकाउंटर की इंफॉर्मेशन मेमोरी बी सेल के पास होगी, एंड दिस मेमोरी बी सेल हेल्प्स ड्यूरिंग सेकेंड एनकाउंटर. जब सेकेंड एनकाउंटर होगा, सेकेंड टाइम सेम पैथोजन एंटर होगा, तो प्रीवियस एनकाउंटर की वजह से, प्रीवियस एक्सपीरियंस की वजह से ये एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन फास्ट होगा, और प्रीवियस मेमोरी की वजह से उसके साथ ज्यादा इफिशिएंटली, ज्यादा इफेक्टिवली इम्यून सिस्टम काम करेगा. सो दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट एनकाउंटर. नाउ कम ऑन दिस पार्ट. As you know, T lymphocyte, वो लिम्फोसाइट जिनका फॉर्मेशन बोन मैरो में हुआ एडल्ट में, जिनका मैचुरेशन थाइमस में हुआ, जिसको हम टी लिम्फोसाइट कहते हैं, एंड दिस लिम्फोसाइट प्रोवाइड्स सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, CMIS. Now these cells, that is T lymphocyte, it also needs the stimulus of antigen. Foreign particle जब बॉडी में एंटर होगा, एंटीजन का स्टिमुलस मिलेगा, एंटीजन का स्टिमुलेशन मिलेगा, तो T lymphocyte again starts proliferating. T lymphocyte का proliferation होगा, T lymphocyte मल्टीप्लाई होगी, और T lymphocyte की मल्टीपल कॉपीज बनेंगी. यानी T lymphocyte के क्लोन्स बन रहे हैं, क्लोन्स ऑफ T सेल. ये क्लोन्स में फर्दर डिफरेंशिएशन होगा, क्लोन्स में फर्दर डिफरेंशिएशन होगा, एंड वी विल गेट फाइनली 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टी लिम्फोसाइट्स. ये लिम्फोसाइट्स के 4 टाइप के क्लोन्स बनेंगे. दे आर नेम्ड एज हेल्पर टी सेल. Second one is killer T cell, also called as cytotoxic T cell. Third one is suppressor T cell, and fourth one is memory T cell. So these are the 4 different type of T lymphocytes which is formed after the stimulation of antigen. मैच्योर टी लिम्फोसाइट को एंटीजन का स्टिमुलेशन मिला, इसके क्लोन्स बने, मल्टीपल कॉपीज बने. नाउ वी हैव 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टी लिम्फोसाइट्स. ईच लिम्फोसाइट हैज इट्स स्पेसिफिक रोल इन प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी. एक एक करके हम देखते हैं बच्चों. फर्स्ट वन, हेल्पर टी सेल विच इज अ टाइप ऑफ टी लिम्फोसाइट. हेल्पर टी सेल ऑन गेटिंग स्टिमुलेशन, जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल बॉडी में एंटर होता है, जब भी कोई पैथोजन बॉडी में एंटर होता है, कोई टॉक्सिक मटेरियल बॉडी में एंटर होता है, सबसे पहले उसको डिटेक्ट करने वाले, रिकॉग्नाइज करने वाले हेल्पर टी सेल्स होते हैं. हेल्पर टी सेल वंस इट गेट्स द स्टिमुलस ऑफ एंटीजन, जब उसको एंटीजन के होने का आभास हुआ, एंटीजन के होने का डिटेक्शन हुआ, तो these helper T cells start producing a chemical called as lymphokines. स्टिमुलेशन मिलने के बाद हेल्पर टी सेल ने लिम्फोकाइंस का प्रोडक्शन किया. अब ये लिम्फोकाइंस नाम का केमिकल क्या करेगा बच्चों? जो लिम्फोकाइंस बन रहा है, these lymphokaines proliferate other T cell. मतलब इसको जब सिग्नल मिला तो ये खुद पैथोजन से फाइट करने नहीं गया, बल्कि इसने एक केमिकल बनाया जिसका नाम लिम्फोकाइंस है. लिम्फोकाइंस बाकी के सेल को सिग्नल देगा, सो दैट बाकी के सेल अलर्ट हो जाए. बॉडी पे हमला तो हो चुका है, इसने रिकॉग्नाइज कर लिया है, तो दीज केमिकल लिम्फोकाइंस गिव सिग्नल टू द अदर सेल्स, प्रोलिफरेट अदर सेल, और ये सभी सेल की पॉपुलेशन इंक्रीज होने लगेगी, बिकॉज नाउ दे हैव टू फाइट. उसके बाद इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, लिम्फोकाइंस, ये केमिकल जो ये प्रोड्यूस करता है, लिम्फोकाइंस ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग स्टिमुलेशन टू बी सेल्स एंड मैक्रोफेजेस.
बी सेल्स, ये बी लिम्फोसाइट जो है ना, बी लिम्फोसाइट, ये वाली सेल, इसको भी स्टिमुलेशन देगा। यहां पर हेल्पर टी सेल ने बी सेल को स्टिमुलेशन दिया और बी सेल के क्लोन्स बने, मल्टीपल कॉपीज बने। सो दे ऑल्सो गिव स्टिमुलेशन टू बी सेल्स एंड दे ऑल्सो स्टिम्युलेट मैक्रोफेजेस। बेटा मैक्रोफेजेस इज द लार्ज साइज engulfing cell which is capable of engulfing the foreign particle. Large size cells are called as macrophages. They are oftenly found in connective tissue, may also be found in blood. तो ये हेल्पर टी सेल का रोल क्लियर हो गया। हेल्पर टी सेल ने सबको एक्टिवेट कर दिया, सबको उठा दिया, सबको जगा दिया कि अब फाइटिंग स्टार्ट हो गई है, पैथोजन आ चुका है और अब उससे फाइट करना है। नो द सेकेंड टाइप ऑफ सेल कॉल्ड एज किलर टी सेल। इसका नाम ही खतरनाक है, इसका नाम है किलर टी सेल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज साइटोटॉक्सिक टी सेल। नाउ दिस किलर टी सेल और साइटोटॉक्सिक टी सेल का क्या रोल है? इनके मल्टीपल क्लोन्स बन गए, बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट हैं। दे डायरेक्टली अटैक एंड डिस्ट्रॉय द पैथोजन। वो डायरेक्टली पैथोजन पे हमला कर देते हैं। डायरेक्टली अटैक एंड डिस्ट्रॉय द माइक्रोब्स, दैट इज पैथोजन माइक्रोब्स। दे ऑल्सो डिस्ट्रॉय द इंफेक्टेड बॉडी सेल्स। बॉडी की वो सेल्स जो माइक्रोबियल इंफेक्शन या पैथोजेनिक इंफेक्शन की वजह से डिस्ट्रॉय हुई है, उसको भी ये खत्म करेंगे। दे डिस्ट्रॉय द इंफेक्टेड बॉडी सेल एंड इवन दे डिस्ट्रॉय द कैंसरस सेल्स। इसके तीन फंक्शन है। किलर टी सेल दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अटैकिंग एंड डिस्ट्रॉइंग द माइक्रोब्स, दैट इज पैथोजन, infected body cells and cancer cell. Next point, beta, this killer T cell binds to infected cell. Infected cell को attach हो जाएगा, infected cell को bind हो जाएगा और एक chemical secrete करेगा जिसका नाम है परफोरेंस। किलर टी सेल इंफेक्टेड टी सेल को अटैच हो गया और एक केमिकल सिक्रीट कर रहा है जिसका नाम है परफोरेंस। परफोरिन नाम का केमिकल क्या करेगा? उस पैथोजन की बॉडी पे, उस माइक्रोब की बॉडी पे मल्टीपल होल बना देगा। परफोरिन उसको परफोरेटेड बना देगा, मल्टीपल होल कर देगा, उसमें छोटे छोटे छेद बना देगा, मल्टीपल होल्स कर देगा। अब वो खड्डे वाला हो गया माइक्रोब्स या पैथोजन। अब होल करने के बाद वापस थर्ड इसका फंक्शन ये है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग अ केमिकल कॉल्ड एज सेल किलिंग सब्सटेंस। वो सेल किलिंग सब्सटेंस सिक्रीट करेगा। वो पहले से ही माइक्रोब्स में होल हो चुके, बाय द एक्शन ऑफ सेल किलिंग सब्सटेंस वो माइक्रोब डिस्ट्रॉय हो जाएगा। दिस इज हाउ किलर टी सेल वर्क्स इन द बॉडी। किलर टी सेल, एक मिनट में रिवाइज करते। किलर टी सेल दे अटैक एंड डिस्ट्रॉय टू द माइक्रोब्स, infected cell and cancerous cell. Next thing, they secretes a chemical called as perforins. Perforins पैथोजन में होल कर देता है। उसके बाद वापस दे secrete cell killing substance जिससे वो perforated पैथोजन मर जाता है। Now the next part, suppressor T cell, the third type of T lymphocyte called as suppressor T cell. बच्चों suppressor T cell, as the name suggests, these type of cells are responsible for for lowering down, शांत करने के लिए काम आते हैं। ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस करते हैं, इम्यून सिस्टम को शांत करते हैं। अभी ये सेल एक्टिव थी, इसने पैथोजन को मार दिया, तो अब पैथोजन जब मर गया तो इसको सप्रेस करने की भी जरूरत पड़ती है। तो सप्रेसर टी सेल सप्रेसेस द एंटायर इम्यून सिस्टम, पूरे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है। sometime in some treatment, rather in some transplantation, immune system has to be suppressed. For example, किसी की बॉडी में किडनी ट्रांसप्लांटेशन करना है, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन करना है, प्लास्टिक सर्जरी में स्किन ट्रांसप्लांट करना है, तो बच्चों उसके इम्यून सिस्टम को सप्रेस करना पड़ता है बाय यूजिंग दिस सेल। इम्यून सिस्टम को सप्रेस करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि आप उसकी बॉडी में फॉरेन पार्टिकल डाल रहे हो, आप उसकी बॉडी में दूसरे का हार्ट डाल रहे हो, दूसरे की किडनी डाल रहे हो, उसका immune system will recognize that part as foreign particle and immune system may reject that part और graft rejection यानी उस पार्ट का बॉडी से रिजेक्शन हो सकता है, इसलिए इम्यून सिस्टम को सप्रेस करना जरूरी होता है। So this suppressor T cell suppress the entire immune system against attack on
ओन बॉडी सेल्स, हमारा इम्यून सिस्टम कहीं हमारे ही बॉडी के सेल्स को अटैक ना कर दे, हमारी बॉडी के सेल्स के लिए ही मतलब फेटल ना हो जाए, हमारी बॉडी की सेल्स को ही डिस्ट्रॉय ना कर दे, इसलिए इम्यून सिस्टम को सप्रेस करके रखना पड़ता है. सो दिस इज द फंक्शन ऑफ सप्रेसर टी सेल. द फोर्थ वन, memory T cell. Now the memory T cell, this is previously sensitized cells. Previously sensitized cell, उस सेल को जिसको फर्स्ट एनकाउंटर की इंफॉर्मेशन है, previously sensitized cell which retain the sensitization memory for the future, जिसको पहले एनकाउंटर का इंफॉर्मेशन है और सेकेंड एनकाउंटर के टाइम ये इंफॉर्मेशन यूज होगा और यूज होने की वजह से सेकेंड एनकाउंटर और सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स विल बी मोर इफेक्टिव, विल बी मोर स्ट्रेंथफुल, विल बी मोर पावरफुल. सेकेंड टाइम जब हमारी बॉडी उस डिजीज के लिए रेजिस्ट करेगी, क्योंकि अब उसके पास पहले एनकाउंटर की मेमोरी टी सेल होगी और मेमोरी टी सेल के पास इंफॉर्मेशन होगा फर्स्ट एनकाउंटर का, तो सेकेंड एनकाउंटर के टाइम या उसके बाद जितने भी एनकाउंटर होंगे सेम डिजीज के लिए, सेम पैथोजन के लिए, हमारी बॉडी उतना इफेक्टिवली उसके लिए फाइट कर सकती है, बॉडी उतना इफेक्टिवली हमारे बॉडी मतलब उस डिजीज से रेजिस्ट कर सकती है. So these are the 4 different type of T lymphocytes. उसका फंक्शन मैंने आपको बता दिया. इन शॉर्ट लास्ट में बेटा ओवरऑल लिम्फोसाइट्स के हमने 6 टाइप्स पढ़े, राइट? बी लिम्फोसाइट के 2 टाइप, प्लाज्मा सेल, मेमोरी बी सेल, और टी लिम्फोसाइट्स के 4 टाइप, हेल्पर टी सेल, किलर टी सेल, सप्रेसर टी सेल एंड मेमोरी टी सेल. सो दिस इज द रोल ऑफ लिम्फोसाइट, दिस इज द रोल ऑफ लिम्फोसाइट इन डेवलपिंग इम्यूनिटी. अभी तुम्हारी बुक में एक पॉइंट और दिया है, हाउ एंटीबॉडी वर्क्स. ये एंटीबॉडी जो है, एंटीबॉडी कैसे एक्ट करती है, मैं नेक्स्ट फ्रेम में, नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करूंगा. अभी यहां पे लिखा है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल. द सेकेंड वे, द सेकेंड मेथड हाउ द सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम इज वर्किंग, द सेकेंड टाइप इज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल. ऐसी सेल जो एंटीजन को प्रेजेंट करे, एंटीजन का शो ऑफ करे, एंटीजन को दिखाए, विल बी कॉल्ड एज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल. अभी क्या होता है, हमारी बॉडी में कुछ फेगोसाइटिक सेल्स हैं, हमारी बॉडी में बहुत सारी फेगोसाइटिक सेल्स हैं. फेगोसाइटिक सेल्स विच इज कैपेबल ऑफ एंगल्फिंग द फॉरेन पार्टिकल. ये फेगोसाइटिक सेल्स ने क्या किया बच्चों, फेगोसाइटिक सेल्स एंगल्स इन्वेडिंग पैथोजन, बाहर से आए हुए पैथोजन को ना, फॉर एग्जाम्पल ये बाहर से आया हुआ पैथोजन है, बाहर से आया हुआ पैथोजन है, और इस पैथोजन को, इस पैथोजन, ये पैथोजन है, पैथोजन को सेल्स ने खा लिया, एंगल्फ कर लिया. अब ये सेल है, राइट? अब ये बाहर से आया हुआ पैथोजन इटसेल्फ और द केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय द पैथोजन इज एक्टिंग लाइक एंटीजन. अभी ये सेल क्या करेगी, मैक्रोफेज या ये कोई भी फेगोसाइटिक सेल्स, ये एंटीजन को प्रोसेस करेगी, एंटीजन की प्रोसेसिंग करेगी, इसकी प्रोसेसिंग किया एंटीजन की, एंड दिस प्रोसेस्ड एंटीजन जो अंदर प्रोसेसिंग हो गई है, दिस प्रोसेस्ड एंटीजन विल बी शोन ऑन द सरफेस. अब ये वाली सेल दिखाएगी अपने आप, अपने सरफेस को शो करेगी कि देखो एंटीजन मेरे पास, एंटीजन मेरे पास, एंटीजन मेरे पास, पैथोजन फॉरेन पार्टिकल मेरे पास. नाउ दीज एंटीजन्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस. ये सेल ने, फेगोसाइटिक सेल ने पहले एंटीजन को खा लिया, उसको प्रोसेस किया, फिर एंटीजन को प्रोसेसिंग के बाद सरफेस पे शो कर रही है. प्रोसेस एंटीजन प्रेजेंटेड ऑन द सरफेस, on own surface delivers signal to activate helper T cell, and these antigen now antigens are present on the surface. These antigen now give signal to the T cell. ये T cell को सिग्नल देगा, और T cell को जब सिग्नल मिलेगा तो T cell क्या करेगा, as you know T cell क्या कर सकता है, T cell का फंक्शन आप जानते हैं, सभी सेल को एक्टिवेट कर देगा और यहां से वापस से ये मैकेनिज्म स्टार्ट होगा. So that is a role of antigen प्रेजेंटिंग सेल. एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल हमारी बॉडी में कैसे फंक्शन कर सकती है, तो बच्चों दीज आर दी सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम, जिसमें लिम्फोसाइट एंड एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, ये पूरा फंक्शन मैंने आपको एक्सप्लेन किया डिटेल में, जितना बुक में दिया था उससे ज्यादा ही एक्सप्लेन किया मैंने. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज फंक्शंस ऑफ एंटीबॉडीज
As you know, antibodies are produced by plasma cell. Plasma cell is a type of B lymphocyte. तो यहाँ पे जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है उसमें जो फ्री एंटीबॉडीज हैं, फ्री एंटीबॉडीज का क्या फंक्शन है, उसके लिए 3 पॉइंट्स यहाँ पे दिए, शॉर्ट में दिया है, शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूं. The first point is agglutination of particulate matter. Agglutination of particulate matter including bacteria and viruses. एंटीबॉडीज बैक्टीरिया और वायरस के साथ मिल करके एग्लूटिनेशन करती है, उसको जमा देती है, एग्लूटिनेट बना देती है. तो जो एग्लूटिनेशन होता है, दैट एग्लूटिनेशन इज इमोबिलाइज्ड मास. जो एग्लूटिनेशन बना है, इट बिकम्स अ मास, इमोबिलाइज्ड मास, ऐसा मास जो मूव नहीं हो सकता है, जम गया है. दैट इमोबिलाइज्ड मास इज एंगल्फ्ड बाय फेगोसाइट्स. फेगोसाइट उसको बाद में एंगल्फ कर लेगा. सो दैट इज द फर्स्ट वे हाउ एंटीबॉडीज वर्क. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंटीबॉडी? सेकेंड पॉइंट इज ऑप्सोनाइजेशन. नो, ऑप्सोनाइजेशन और कोटिंग ऑफ बैक्टीरिया. जो पैथोजन है, जो बैक्टीरिया है, एंटीबॉडीज उसको कोट कर लेंगी. उसको कोटिंग वाले प्रोसेस को ऑप्सोनाइजेशन बोलते हैं. एंड दिस ऑप्सोनाइजेशन फैसिलिटेट्स फेगोसाइटोसिस बाय मैक्रोफेजेस. ऑप्सोनाइजेशन में मतलब बैक्टीरिया के ऊपर एंटीबॉडीज की कोड बनेगी, ऑप्सोनाइजेशन होगा, और ऑप्सोनाइजेशन के बाद इट हेल्प्स, इट फैसिलिटेट्स फेगोसाइट्स को, वो हेल्प करेगा, फेगोसाइट्स को वो निमंत्रण देगा कि वो आकर उसको खा ले, उसको एंगल्फ कर ले. फैसिलिटेट्स फेगोसाइटोसिस बाय मैक्रोफेजेस. मैक्रोफेज इज अ टाइप ऑफ फेगोसाइटिक सेल. द थर्ड वन इज न्यूट्रलाइजेशन ऑफ टॉक्सिन्स. न्यूट्रलाइजेशन ऑफ टॉक्सिन्स. अभी जो पैथोजन है, जो बैक्टीरिया है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, many time microorganism itself is not pathogenic, but the chemical, the toxin they produce is pathogenic. तो जो टॉक्सिन रिलीज होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, दैट टॉक्सिन इज न्यूट्रलाइज्ड बाय द एंटीबॉडीज. Toxins are neutralized by the antibodies. तो neutralization of toxins released by bacteria, that is pathogen. Example is tetanus toxin. Tetanus के बैक्टीरिया से जो टॉक्सिन रिलीज होता है उसको एंटीबॉडीज न्यूट्रलाइज करते हैं. तो रिमेंबर दिस 3 मेन वर्ड: एग्लूटिनेशन, ऑप्सोनाइजेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन. In this 3 method, in this 3 different ways, antibodies are functioning. ये 3 वर्ड याद रखना. ओके, तो बच्चों यहां पर ये पार्ट पूरा होता है. In the next lecture, we'll start with some new side heading.